Hello. Very good morning to all of you. Every time you students participate in different activities and that basically make you able to understand the different parts of your potential and different parts of your ability. Few days back, there was similar kind of competitions we have witnessed, that is for standard 8. That was also a kind of presentation in the form of presentation in a different way of presenting the gestures depicting to very specific topic related of patriotic. It was this time of standard 7 the same. I think you all have prepared yourselves to present yourself in the form of action, in the form of acting to represent the action what you are going to represent, and special kind of occasion is there, perhaps you might have prepared yourself, and the costumes what you have taken up, that costumes are itself telling that your presentation is going to be more or less patriotic sort of things. That is a kind of emotions you might be having towards the nation and what your ancestors have done for the country and how they have put their bravery before the jackals of the intruders and how they come up and protected the country. In that way, if it is being presented, you will be able to understand in a very easy way, in very enjoyable method, where you can see how beautifully these small students of your class are going to present all kinds of suspects what they have experienced and they want to share. So this kind of things you will be able to find out, and since you are sitting here to support your section, of course you should support your section, but at the same time you should support other sections also, because all are of your class of standard 7. Maybe of different sections does not mean, but all are of this standard 7 students. So those who are performing on the stage, who will be going to perform, you have to appreciate, you have to clap for them if they are doing better, and those who are coming on the stage, because participation stands a lot and means a lot. Once you participate, then only you will be able to come that what are the things left to be done to get much better, and then you will be able to find out yourself in a position where somebody tells that you have done exceptionally well, and for that you are appreciated in the form, in the token of medals, in token of trophies and all that. But this is not only, this is simply symbolic to tell you that you have done something very special and something exceptional, and for that there should be a continuous process of the things. Once you participate and you learn that whatever the left to be rectified, next time you will be doing a bit better than what you have done previously. Next time, gradually you will just prove yourself to the better one, and finally you will also be in a position to come to have exceptional performance, and for that you will be awarded or appreciated. Now enjoy the performances of your classmates, your section mates, and appreciate all of them in terms of clapping and as per the instruction of your teachers, those who have involved. So give a big hand for all the participants, those who have, and of course for the teachers, those who have into the effort to prepare the team's action on the stage. So give a big hand for your teachers also, those who are involved to prove yourself in a different part of the cultural activity. Thank you very much. You want to cross the limit when the sky is not the limit. So please give a big hand to Ranjana Mishra madam, because she's the one who has taken all the things, and here you are with all costumes and all enthusiasm. We wish all the team a very best luck, very good luck. And meanwhile, Mrs. Anita Kumari is judge. She will be judging you on the basis of your presentation, your dialogue delivery, your costumes and your confidence. My dear children, when you are on the stage, please try to overcome stage fright, and at the same time, always your face should be at the audience side. Do not show your back to the audience. All the best. Over to Ranjana Mishra ma'am. मेरा सादर नमन और सभी छात्र छात्राओं, बहुत ही प्यार से और बड़े ही शांति से तुम लोग बैठे हो, और ऐसी ही शांति बनाए रखना और अपने अपने क्लास को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो अभी मैं कक्षा 7th A के सभी
प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो सब स्टेज पर आएं और अपनी नाटक की प्रस्तुति दें। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और सभी दरबारी चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश। कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है। वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है महाराज। यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आमदी सिकंदर से मिल गए हैं। हम जानते थे अम्बी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। जो आगे सम्राट। महामंत्री, आसपास के और मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। जो आगे महाराज। हाँ, उनसे कहना अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। हमें मिलकर उसे हराना होगा। भले ही वह पूरी दुनिया जीत ले, जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता। एक सेवक का प्रवेश। महाराज की जय हो। सिकंदर का दूत आया है। उसे अंदर ले आओ। जो आ गया। दूत का प्रवेश। वह झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। महाराज की जय। कहो दूत, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? महाराज, सम्राट ने बोला है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आमदी की तरह उनसे सुलह कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। और अगर यदि हम उनकी बात ना माने तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार से कहना, हम उन्हें हारना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में हम उनका स्वागत करेंगे। दूसरा सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है। पास ही में आम्बी और सेल्यूकस भी बैठे हैं। एक दूत का प्रवेश। आओ दूत, हमारा संदेश गुरु तक पहुंचा। पहुंच गया सम्राट। हम जवाब सुनना चाहते हैं। महाराज, गुरु ने कहा है कि वे हमारा जंग के मैदान में करेंगे। क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? मैंने सब कुछ कहा सम्राट। फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। सेल्यूकस, सेना को कुछ का आदेश दो। हमें पुरु को सबक सिखाना होगा। जो आ गया सम्राट। तीसरा दृश्य। झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झीलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाली हुई है, दिखाई दे रही है। अचानक से मन में प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात करते हुए। 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सैनिक झेलम पार न कर सका। ये हमारी हार है सेल्यूकस, हार। ऐसा नहीं है सम्राट। झेलम चढ़ी हुई है। हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है। हमारे सैनिक उनका मुकाबला करने से डर रहे हैं। सिकंदर के रहते हुए उनके सैनिकों में कैसा डर? इससे अच्छा तो हम झेलम में डूब के मर जाए। एक सिपाही का प्रवेश। महाराज की जय हो। उन्हें आदर से ले आओ। प्रणाम सम्राट। आइए राजा अम्बी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमारे सैनिक गुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं। लगता है हमें युद्ध का विचार छोड़ना होगा। आप ऐसा ना सोचें सम्राट। जीने में यह वर्षा हमारे लिए वरदान है। जीने की और दलदल में हाथों से तय नहीं। कल का दिन आपके विजय का दिन होगा। आप सेना को पूछ का आदेश दें। आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम पार कैसे करेगी? वो मेरे ऊपर छोड़ दे। यहाँ से थोड़ी दूर में एक टापू है। यदि कम गहरी है, सेना वहीं से पार होगी। सेल्यूकस, सेना को कुछ का आदेश दो। मेरा घोड़ा ले आओ। जो आ गया सम्राट। चौथा दृश्य। रात का समय, मार्च पर अंधेरा। पुरु के सोते हुए सैनिक पर सिकंदर के सैनिक का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज आती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं। थोड़ी देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। सिकंदर उठता है। मंच पर सिकंदर बैठा हुआ, वह अपने विजय पे खुश है। सेल्यूकस को पुकारते हुए, सेल्यूकस, सेल्यूकस, कैदी को पेश करो। जो आ गया सम्राट। सेल्यूकस जाता है और बंदी गुरु को लेकर आता है। आइए राजा गुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देखी नहीं होगी। वीरता नहीं, धोखा देखा है। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। युद्ध
युद्ध युद्ध है राजा पुरु। यहाँ धोखा और न्याय नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। हमने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सुना सम्राट, रस्सी जल मगर ऐठ नहीं। हम भी अब बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। हम आपका जवाब आज आपको वापस करते हैं। मगर सम्राट है यह राज आपने मुझे देने का वादा किया था, यह तो धोखा है। हम भी अपनी औकात समझो। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने राज्य के साथ किया है। अब आप जा सकते हैं। महाराजा पुरु, आज से आप हमारे मित्र हैं और यह मित्रता मरते दम तक कायम रहे। धन्यवाद। भाइयों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और तुम लोगों के लिए भी एक ताली हो जाए। तुम लोगों ने बड़े शांत दिल से इस नाटक को देखा है। अब मैं कक्षा 7 के छात्र छात्राओं को इस मंच पर आके अपने नाटक की प्रस्तुति देने के लिए बोलना उपस्थित हो। नमस्ते परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, निर्णायक मंडली, शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे सहपाठी। आज हम लोग कक्षा 7 की 2 के विद्यार्थी आपके समक्ष देशभक्त पुरु नाटक का मंचन करने जा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग पात्रों से परिचित होते हैं। मैं पलक कुमारी सूत्रधार की भूमिका निभा रही हूँ। मैं सुहानी कुमारी आंधी की भूमिका निभाने जा रही हूँ। नमस्ते, मैं इकरा लोका सेवक की भूमिका निभाने जा रही हूँ। नमस्ते, मैं सोनाक्षी सिंह सिपाही की भूमिका निभाने जा रही हूँ। नमस्ते, मैं अंजलि कुमारी सिकंदर की भूमिका निभाने जा रही हूँ। नमस्ते, मैं अदिति आत्मसानी की भूमिका निभाने जा रही हूँ। नमस्ते, मैं छवि कुमारी आज पुरु की भूमिका निभाने जा रही हूँ। नमस्ते, मैं कृष्णा विदुषी आज सेल्यूकस की भूमिका निभाने जा रही हूँ। नमस्ते, मैं महामंत्री की भूमिका निभाने जा रहा हूँ। नमस्ते, मैं आयुष में ध्रुव की भूमिका निभाने जा रहा हूँ। पहला दृश्य राजा पुरु का दरबार। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग संगीत बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश। क्या समाचार है? मजाक अच्छा नहीं होता। हमारी सेना से नेपाल पर चुनी राजा तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है और इसकी समाचार है राजा सेना के महाराज राजा अपनी करने का दिल है। हम जानते हैं आप भी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब सिकंदर के साथ हमें उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री आसपास के राजाओं और मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। एक और बात, मुझसे कहना या आपस में लड़ने का समय नहीं है। पिछली बातों को भूल जाएं। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। हमें उससे मिलकर हराना होगा। भले वह पूरी दुनिया जीते, लेकिन जब तक हम हैं वह भारत को नहीं जीत सकता। आगे हमारा उसे अंदर ले आओ। दूत का प्रवेश पर गुप्ता राजा पुरु को सलाम करता है। महाराज की जय। पहलू, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? महाराज, सम्राट ने कहा है कि वो देश जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। उनकी इच्छा है कि आप भी राजा अंधी की तरह उनसे सुलह कर ले, जिससे लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी बढ़ जाएगी। और यदि हम उनकी बात न माने तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। दूत, अपने सम्राट से कहना हम उसे हारना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में हम उनका स्वागत करेंगे। दूसरा दृश्य सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है। पास में ही आम्बी और सेल्यूकस भी बैठे हुए हैं। दूत का प्रवेश। सम्राट की जय हो। हमारा संदेश तुम तक पहुंचा। कौन क्या सम्राट? हम जवाब सुनना चाहते हैं। वो हमारे लड़ाई के मैदान में स्वागत करेंगे। आगे नहीं लड़के, हमारी सेना जीती नहीं है। सब कुछ कहा सम्राट, लेकिन फिर भी शुरू करने के लिए तैयार है। सेल्यूकस, सिखाने का कुछ आदेश दो। पुरु का सबक सिखाना होगा। जवाब दिया सम्राट। तीसरा दृश्य झेलम के किनारे
हैं, उन्हें आकर के साथ ले आओ। प्रणाम सम्राट। आइए राजा अभी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे जवान गुरु के हाथियों से घबराए हैं, लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। आप ऐसा न सोचें सम्राट, यह मोर्चा हमारे लिए वरदान है। दलदल अभी भी जमीन में हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी कितने ही होगा, आपसे तो सेना को पूछ का आदेश दे। आदेश देने क्या होगा, तेरा घेरा करके पार करेगी। सम्राट जब मेरे ऊपर छोड़ दे, यहाँ से थोड़ी दूर पास नदी के पीछे टापू है, वहाँ नदी कम गहरी है, सेना वहाँ से पार हो जाएंगी। चलिए कर, सिपाहियों को पूछ का आदेश दो, मेरा घोड़ा ले आओ। जोर दिया सम्राट। चौथा दिन, रात का समय मंच पर अंधेरा है। पर्दे के पीछे गुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज आती है, लोग चीखते चिल्लाते हैं। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है। सिकंदर जिंदाबाद, सिकंदर जिंदाबाद, सिकंदर जिंदाबाद। पर्दा उठता है, मंच पर गुरु बैठा है, वह अपनी विजय पर खुश है, सेल्यूकस को पुकारता है। सेल्यूकस, आज्ञा सम्राट। सैनिक को पेश किया जाए। सेल्यूकस जाता है और बंदी गुरु को लेकर आता है। आइए राजा गुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। वीरता तो नहीं, लेकिन धोखा जरूर देखा। चोरों की भांति रात रात आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। युद्ध राजा गुरु, वहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी। अब आप हमारे कैदी हैं, बताइए आगे जाकर कैसा निर्णय चल रहा है। वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। न सम्राट रस्ती चल गई, परेड नहीं गई। आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। हम आपके जवाब से बहुत खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुरी दे सकता है। अब आप कैसे आजाद हैं, हम आपका राज्य वापस करते हैं। मगर सम्राट आपने यह रथ मुझे दे दिया था, यह धोखा है। अपनी औकात समझो। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है, और देश के गद्दारों को दिल देना ईमानी खूब जानते हैं। अब आप जा सकते हैं। अब से हम आपके दोस्त हैं, और मैं वचन देता हूँ कि अदों की विजय का धन्यवाद। बहुत अच्छा। सर एक भी देर छात्र छात्राओं ने अपने नाटक की बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है और उनके लिए तो लोगों ने फिर से एक प्रोग्राम लगेगा। तुम लोग भी बहुत ही शांत होकर के देख रहे हो, अनुशासित होकर के, इसलिए अपने लिए भी एक ताली। अब सेवेंथ सी के छात्र छात्राएं उपस्थित हो रहे हैं अपने नाटक की प्रस्तुति देकर। सेवेंथ सी के सभी छात्र छात्राएं अपनी प्रस्तुति देकर मंच पर उपस्थित हो। यही ध्यान से देखें नाटक को। आप लोग खुद जज करेंगे ना, देखिए किस सेक्शन का सबसे अच्छा हो रहा है। नमस्ते, मैं विनीत राजनाई नाटक में महामंत्री की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा, मैं इस नाटक में सैनिक की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हर्षित कुमार मिश्रा, मैं सेवक की भूमिका निभा रहा हूँ। सर मैं नंद कुमार, मेरी सेनापति के भूमिका। नमस्कार, मैं उनका नाटक में भूमिका कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं इस नाटक में राजा आमी की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं ऋषि कुमार, मैं चारित्र का भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ राज है, इस नाटक में सिकंदर का भूमिका निभा रहा हूँ। राजा कुरु का दरबार लगा है, मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। तभी एक सैनिक का प्रवेश होता है। महाराज विजय, क्या समाचार है? समाचार है कि नहीं है महाराज, हमारी सेना प्रभु पार कर चुकी है। सेना हमारी ओर ब्रिटेन रेल से जमी चली आ रही है। साथ ही साथ बड़ी समाचार मिला है कि दक्षिणा के सम्राट राजा अम्बी सिकंदर के साथ सम्मिलित हो गए। हम जानते थे कि अभी ऐसा ही करेगा, वह एक देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। हाँ मंत्री, आसपास के सारे मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजिए। जो आ गया महाराज। एक बात और, उसे कहना कि अब वापस करने का समय नहीं है, वो पिछली बातें भूल जाए। भले ही किसी का लड़ाई देख चुका हो, मगर हम उसके साथ उसका हराना ही होगा। हाँ, बड़ी हो पूरी दुनिया जीत जाए, मगर हम उसके साथ उसका भारत नहीं जीत सकते। जो आ गया महाराज। इसके पश्चात एक सेवक का प्रवेश होता है। जय हो। उसे पेश किया जाए। दूत का प्रवेश होता है, वह झुककर सम्राट को सलाम करता है। राज विजय हो। कहो तू क्या समाचार लेके आने का सम्राट हमारे लिए?
खुला ना करें तो उन्होंने लड़ाई के लिए तैयार रहने कहा है। महाराज जैसे सीखना जानते हैं तो अपने सम्राट को जाकर कह देना कि हम हारना भी सिखा देंगे और हम उनका स्वागत युद्ध के मैदान में ही करेंगे। जो आ गया सम्राट। इसके पश्चात दूसरे दृश्य का प्रारंभ होता है सिकंदर के शिविर से। सिकंदर बैठा हुआ, पास नहीं आदमी और सेविका से बैठा, तभी दूत का प्रवेश होता है। महाराज की जय। आओ दूत, हमारा संदेश दूर तक पहुंचा। बहुत क्या सम्राट। हम जवाब सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे हमारा स्वागत जंग के मैदान में ही करेंगे। क्या वो नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? सब कुछ कहा महाराज, फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार है। सैल्यूटर, सिपाहियों को कुछ आदेश दो, गुरु को सबक सिखाना ही होगा। वो आ गया सम्राट। इसके पश्चात तीसरे दृश्य का प्रारंभ होता है झेलम के किनारे से। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाली हुई है। नदी चढ़ी हुई है, तेज पानी बरस रहा है, अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है, सिकंदर शरीकत से बात कर रहा होता है। 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार नहीं कर सका। यह हमारी हार है सैल्यूटर, हार है। बरसात के दिन है, झेलम नदी चढ़ी हुई है। हमारे सैनिक घबराए हुए गुरु के पास आते की बड़ी सैनिक है। हमारे सैनिक हमला करने से डर रहे हैं। सिकंदर के जीते उनके जवान में कैसा डर? डरने से अच्छा है कि हम सब झेलम में डूब गए। इसके पश्चात एक सिपाही का प्रवेश होता है। महाराज की जय। राजा उनका से मिलना चाहते हैं। आदर के साथ अंदर ले आओ। क्यों आ गए महाराज? चलिए राजा हम भी। प्रणाम सम्राट। आइए राजा, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमारे जवान पुरुष हाथियों से घबराए हुए हैं। लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। आप ऐसा ना सोचिए सम्राट, मैं बैठकर हमारे से बर्दाश्त करूं। संघर्ष और पुलिस को मैं हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आप होगा। आप कल केवल सेना को कूच का आदेश दे। आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार कर पाएगी? यह मेरे ऊपर छोड़ दे महाराज। यहाँ की थोड़ी दूर में नदी के बीच में एक टापू है जहाँ पानी कम नहीं है। वहाँ से सेना हमारी पार हो जाएगी। सैल्यूटर, सेना को कुछ का आदेश दो, मेरा घोड़ा ले आओ। इसके पश्चात चौथे दृश्य का प्रारंभ होता है रात के समय से। अंधेरा है, पर्दे के पीछे पुरुष में सोते हुए सैनिक और सिकंदर की सेना का भीषण आक्रमण। पर्दे के पीछे लड़ाई की आवाज आती है। लोग चीखते हाथी घोड़े की आवाज भी सुनाई देती है। पूरी देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजने लगता है। सिकंदर बैठा हुआ है, वह अपनी विजय पर खुश है और सैनिकों को पुकारता है। सैल्यूटर, सैल्यूटर, जो आ गया सम्राट। गैदी को पेश किया जाए। आ गया सम्राट। सैल्यूटर जाता है और बंदी पुरुष को लेकर आता है। आइए राजा पुरु, अब आपने सिकंदर की वीरता देखी। वीरता नहीं, क्यों देख सकते? रात में चोरों की बारी आक्रमण। रात में चोरों की बारी आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। युद्ध युद्ध होता है राजा पुरु, यहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। आप हमारे कैदी हैं, बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे के साथ करता है। देखो महाराज, कैसे चल रहे हैं? ऐड नहीं है। आमीन, आप बहादुर की इज्जत करना नहीं जानते हैं। हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। हम आपको कैसे आजाद करते हैं और हम आपका राज भी वापस करते हैं। मगर सम्राट, यह राजा आपने मुझे देने का वादा किया था, यह धोखा है। आमीन, अपनी औकात समझो। धोखा हमने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। देश के गद्दारों को सीख देना यानी खूब जानते हैं। अब आप जा सकते हैं। महाराज पुरु, आज से हम आपके दोस्त हैं। मैं वचन देता हूँ कि ये दोस्त जीतेगी, गाय रहेगी। उसी के साथ हमारा और ताली में आवाज की कमी आ रही है। ताली क्यों भरी? बहुत अच्छी प्रस्तुति थी ना। 7th B के छात्र छात्राएं मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए उपस्थित हों। 7th B की छात्र छात्राएं और उनका सब तालियों से स्वागत करेगा। 7th B के सभी छात्र छात्राएं अब प्रस्तुत हो चुके हैं मंच पर। अब उनके नाटक का प्रारंभ होगा। सूत्रधार सान्वी को मैं माइक देती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शांति है। मैं कक्षा 7वीं तक की छात्र हूँ और आज मैं भेदभाव पूर्ण नाटक प्रतियोगिता में सूत्रधार की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या है। मैं यहाँ आंटी की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और मैं इस नाटक में महामंत्री की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम किशन कुमार है और मैं इस नाटक में सेवक की भूमिका निभा रहा हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम प्रणव रंजन है और मैं इस नाटक में सेलूकस की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विज्ञान है और मैं इस नाटक में सिकंदर की भूमिका निभाने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं इस नाटक में पुरुष का रोल निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनीस राज है और मैं इस नाटक में सेनापति का भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं इस नाटक में दूत का भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद अयान है और मैं इस नाटक में सिपाही की भूमिका निभा रहा हूँ। प्रणाम, मेरा नाम प्रणव शुक्ला है, मैं इस नाटक में सैनिक की भूमिका निभा रहा हूँ। पहला दृश्य राजा पुरु का दरबार। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश। महाराज की जय हो। समाचार अच्छा नहीं। महाराज, समाचार अच्छा नहीं है। यूनानी सेना सिंधु पार करती है, बहुत तेजी से हमारी बढ़ रही है। महाराज, जल्दी खबर है कि तकसीरा के राजा हम भी यूनानी सेना से मिल चुके हैं। हमें पता था अभी ऐसा ही करेगा और देशद्रोही है। हमें सिकंदर अभी को भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, आगे सम्राट। युद्ध की तैयारी करो। जो आगे सम्राट। महामंत्री, आसपास के सारे मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। हाँ, एक और बात, उन्हें कहना कि अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। उन्हें कहना कि दूसरी बातें भूल जाए और युद्ध की तैयारी में लग जाए, क्योंकि सिकंदर कई देश जीत चुका है। भले ही वो पूरे देश जीत जाए, पर जब तक हम हैं, तब तक वो भारत नहीं जीत सकता। एक सेवक का प्रवेश। महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, सिकंदर का दूत आपसे मिलने का अभिलाषी है। उन्हें अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। तुम्हारे सम्राट ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वो निर्दोषों का खून नहीं बहाना चाहते, इसलिए उनकी इच्छा है कि आप भी आंधी की तरफ से सुधार कर ले, जिससे लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गति भी बच जाएगी। और यदि हम उनकी बात ना माने तो सम्राट ने कहा है लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए। मैं सिर्फ इतना जानते हैं। तुम अपने सम्राट से कह देना कि हम उसे हराना सिखा देंगे। हम उनका स्वागत लड़ाई के मैदान में ही करेंगे। जो आ गया महाराज। दूसरा दृश्य सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है। पास में ही आंधी और सैनिक भी बैठे हैं। एक दूत का प्रवेश। सम्राट की जय हो। आओ गुरु, हमारा संदेश गुरु तक पहुंचा। बहुत क्या महाराज, हम जवाब सुनना चाहते वो हैं। हमारा लड़ाई के मैदान में स्वागत करेंगे। क्या वो नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? सब कुछ कहा महाराज, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार है। सेलूकस, सेना को कूच का आदेश दो। जो आ गया सम्राट। गुरु को सबक सिखाना होगा। तीसरा दृश्य झीलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झीलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाले हुई है। नदी चढ़ी हुई है। तेज पानी भी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है। 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही झेलम पार न कर सका। ये हमारी हार है सेलूकस, हार है। सम्राट, बरसात के दिन है, झेलम चढ़ी हुई है, हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। गुरु के पास हाथियों की बहुत बड़ी फौज है, हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने में डर रहे हैं। सिकंदर के जीते दियों के जवानों में कैसा डर? डरने से तो अच्छा है कि हम सब झेलम में डूब मरे। एक सिपाही का प्रवेश। राज की जय, आप राजा हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आकर सही करने ले आओ। प्रणाम सम्राट। आइए राजा भी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमारी सेना पूरे हाथियों से डरी हुई है। लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना पड़ेगा। आप ऐसा ना सोचिए सम्राट, यह मैदान हाथी के मैदान है। यह दलदल और गीली का नहीं होगा, हाथी के पैर नहीं दिखते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। वापस अपनी सेना को कूच का आदेश दे। आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? ये सदा खुद पे खोल दे सम्राट। यहाँ से थोड़ी दूर नदी के पीछे टापू है, जहाँ नदी कम है, वहाँ से सेना पार हो जाएगी। सेलूकस, सेना को कूच का आदेश दो। मेरा क्या ले आओ। तो क्या सम्राट? चौथा दृश्य रात का समय। मंच पर अंधेरा है। पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज आती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं। हाथी घोड़े की आवाज भी सुनाई पड़ती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है। सिकंदर जिंदाबाद, सिकंदर जिंदाबाद। पर्दा उठता है। मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है। वह अपनी विजयी पर खुश सैनिकों को पुकारता है। सेलूकस, सेलूकस, आज्ञा सम्राट। कैदी को पेश करो।
आइए राजा गुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ही ली। वीरता वीरता नहीं धोखा जरूर देगा। रात को चोरी फाटी आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। युद्ध है राजा गुरु, यहाँ पे न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। हमने अंधेरे में राजा गुरु का दरबार, राजा गुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या समाचार है? समाचार अच्छा नहीं है महाराज। रानी सेना सिंधु पार कर चुकी है, हमारी रथ तेजी से बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तहसीला में राजा आम्ही सिकंदर से मिल चुके हैं। हम जानते थे आम्ही ऐसा ही करेगा, वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सेवा दिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के सभी मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण के पत्र भेजो। जो आज महाराज, एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पिछली बातें भूल जाए। सिकंदर कई युद्ध को जीत चुका है, अब हमें मिलकर उसे हराना होगा, चाहे वो पूरी दुनिया क्यों न जीते। जब तक हम हैं, भारत नहीं जीत सकता। एक सेवक का प्रवेश। महाराज की जय हो। सिकंदर का दूध है, उसे अंदर ले आओ। दूत का प्रवेश। वह झुककर राजा गुरु को सलाम करता है। कहो दूत, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? महाराज, सम्राट ने कहा है कि वह दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा यह है कि आप भी आम्बे की तरह उनसे सुलह कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। और यदि हम न माने तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है महाराज। वे सिर्फ जीतना जानते हैं। दूत, अपने सम्राट से कह देना, हम उन्हें हराना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में ही हम उसका स्वागत करेंगे। दूसरा दृश्य। सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है, पास में ही आम्ही और सैनिक भी बैठे हैं। दूत का प्रवेश। सम्राट की जय हो। आओ दूत, हमारा संदेश गुरु तक पहुंचा। पहुंच गया सम्राट। हम जवाब सुनना चाहते हैं। सम्राट पूर्व हमारा लड़ाई के मैदान में स्वागत करेंगे। क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पूर्व लड़ाई के लिए तैयार है। सैनिक भाइयों को पूछ कर देख दो, जो आगे उनको सबक सिखाना होगा। तीसरा दृश्य। झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाली हुई है। नदी चली हुई है, तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सैनिकों से बात करते हुए। सेल्यूकस, जो आ गया सम्राट। 2 महीने हो गए, हमारे एक भी सिपाही नदी पार न कर सका। यह हमारी हार है, सेल्यूकस हार है। सम्राट, और 7 के दिन है, झेलम चली हुई है। हमारे सैनिक उससे मुकाबला करने में घबरा रहे हैं। सम्राट, तुरु के पास तो हाथियों की बड़ी फौज है, हमारे सैनिकों का मुकाबला करने में डर रहे हैं। सम्राट, सिकंदर के जीते कि उसके दीवारों में कैसे डरने से अच्छे कि हम सब झेलने में डूब मरे। एक सिपाही का प्रवेश। महाराज की आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें आदर से साथ ले आओ। प्रणाम सम्राट। आइए राजा आंटी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे जवान पुरु के हाथी से घबराए हुए हैं, लगता है युद्ध का विचार छोड़ना होगा। आप ऐसा ना सोचें सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है। दलदल की गीली मिट्टी में हाथियों के पैर नहीं दिखते। कल का दिन आपके विजय का दिन होगा। बस अब अपने सेना के कूच का आदेश दे। आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? यह सब आप मुझ पर छोड़ दे। यहाँ से थोड़ी दूर पे एक टापू है, वहाँ नदी कम गहरी है, सेना वहाँ से पार हो जाएगी। सेल्यूकस, सेना को कूच का आदेश दो। मेरा घोड़ा ले आओ। जो आ गया सम्राट। चौथा दृश्य। रात का समय, मंच पर अंधेरा है। पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज आती है। मारो, काटो, बचाओ, मारो, काटो, बचाओ, मारो, काटो, हाथी घोड़े की भी आवाज आती है।
जिंदाबाद का नारा गूंजता है। सिकंदर की जय हो, सिकंदर की जय हो। पर्दा उठता है, मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है, वह अपनी विजय में खुश है। सेलिब्रेट को पुकारता है। सेल्यूकस सेल्यूकस, जो आ गया सम्राट, कैदी को पेश करो। सेलिब्रेट जाता है और बंदी गुरु को लेकर आता है। आइए राजा, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। वीरता नहीं, धोखा। रात में छोड़ो की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। युद्ध है राजा गुरु, यहाँ वहाँ न्याय या धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं, बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राजधानी जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर एक नहीं गई। हम भी या बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। अब आप कैद से आजाद हैं। हम आपका राज्य वापिस करते हैं। मगर सम्राट, आपने तो यह राज्य मुझे देने का वादा किया था। यह धोखा है। आप भी अपनी औकात समझो। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं। अब आप जा सकते हैं। महाराजा पुरु, आज से हम आपके मित्र हैं। मैं वचन देता हूँ कि ये दोस्ती जीते जी कायम रहेगी। धन्यवाद। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। 7th का बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। विद्यार्थी आप सबके समक्ष देशभक्ति नाटक का मंचन करने जा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम हम लोग पात्रों से परिचित होते हैं। मैं अपनी श्री सूत्रधार की भूमिका निभा रही हूँ। मैं वैष्णवी राठौर और रेड सेवक की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्ते, मैं साक्षी और मैं रूस की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्ते, मैं प्रांजलि, मैं महावल की भूमिका निभाने जा रही हूँ। सॉरी। नमस्ते, मैं आनंद कुमार, मैं सिपाही का भूमिका निभाने जा रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम यशरन है। राजा पुरु की भूमिका निभाने जा रहा हूँ। नमस्ते, मैं आदित्य राज, आज सैनिक की भूमिका निभाने जा रहा हूँ। पहला दृश्य राजा पुरु का दरबार। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाई हो? समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है और तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्बी पुरु से राजा आम्बी सिकंदर से मिल गए। हम जानते थे आप भी ऐसा ही करेगा। वे देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ मुझे भी सबक सिखाना होगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के मित्र राजाओं को युद्ध का निबंधन पत्र भेजो। महाराज, एक और बात, उनसे कहना कि अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पिछली बार भूल जाए और हमारे साथ सिकंदर का मुकाबला करें। वो हमारे साथ सिकंदर का मुकाबला करें। भले ही सिकंदर कई देश जीत चुका है, जब तक हमें वो भारत नहीं जीत सकता।
न माने तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है, वे सिर्फ दुनिया जीतना चाहते हैं। अपने सम्राट से कहना हम उन्हें हारना सिखा देंगे, अब हम उनका लड़ाई के मैदान में ही स्वागत करेंगे। दूसरा दृश्य सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है, पास में यामती और सैनिकस भी बैठे हुए हैं। दूध का प्रवेश। सम्राट की जय। हमारा संदेश तक पहुंचा। कौन किया सम्राट? हम जनाब पूछना चाहते हैं, सम्राट शुरू लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करें। क्या वे नहीं जानते कि हमारे साथ गोली पड़ी है? सब कुछ कहा, सम्राट फिर भी शुरू लड़ने के लिए तैयार है। फिर हम कुछ आदेश दो, फिर हमें वक्त सिखाना होगा। तीसरा दृश्य झीलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झीलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाली हुई है, नदी चढ़ी हुई है, तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है, सिकंदर सैनिकों से बात कर रहा है। 2 महीने हो गए, हमारा एक भी काम नहीं हो सका। यह परिवार एक हाल है। सम्राट बरसात के दिन झीलम चढ़ी हुई है, हमारे सैनिक रुक रहे हैं, हमारे सैनिक भाग्य से बादल को डर रहे हैं। इससे अच्छा हम सब सेना में एक सिपाही का प्रवेश। महाराज की जय। महाराज रामजी, महाराज हम आगे आना चाहते हैं। उन्हें आगे ही ठाकते हैं। जी महाराज। आइए राजा जी, हम आपके का इंतजार कर रहे थे। हमारे जवान पूरे दिन को रह रहे हैं। लगता है कि लड़ाई का मुझे आप छोड़ना होगा। आप ऐसा ना सोचें सम्राट। यह सामान्य प्रकार है। अगर हम पीढ़ी के बीच में हाथ से पैर नहीं हो जाए। Dear students, the colorful performance is over, and this is the time for judgment. The judgment has already been taken. तो क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? 7A, 7D, 7C, 7E, OMG. Competition is really बड़ा रेल फाइटिंग competition है. When I see the costume, okay, just a moment, everybody quiet, and सभी लोग huge round of applause to all the participants, सारे participants के लिए. Audience. और थोड़ी सी ताली तुम्हारे शिक्षकों के लिए. I would like to call Das sir on the dais for 2 words. Das sir, you are requested to be on the dais. और Das sir की ताली बजाओ. वो बनाए वही से शिक्षक, लेकिन उनकी पकड़ आंखों पर भी निकली. With you all and share with you all. तो Das sir on the dais, आज पुरु की देशभक्ति इन्होंने देखी है, इन्हें कैसा लगा है? Good afternoon. जैसे कहा जाता है ना, he came, he saw and he conquered. मैं आया, मैं देखा, आपने मेरा भी जीत लिया. Each and every participant has done excellent. Either he may be the soldier, either he may be the servant, he may be the poor, he may be the Sikandar, Seleucus. All have done marvelous job. I have no words. And in a very short span of time, Ranjana Madam alone has done a 20 job.
Both the fellow teachers were absolutely diligent, but she had meticulously designed a very, very interesting and patriotic theme. तो जब ये जवाब आता है कि मेरे साथ आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो जो जवाब देता है वो वास्तव में हृदय को द्रवित कर देता है। एक राजा के साथ जैसा व्यवहार होता है वही मेरे साथ कीजिए, और उसका जो जवाब है वो भी बहुत मार्वलस है कि आपने मेरा दिल जीत लिया और अंधेरी रात में मैंने आपकी चमकते हुई तलवारों को देखा है। वास्तव में एक पीढ़ी फिर का सम्मान कर सकता है। तो बहुत सुंदर अभिनय आप लोगों ने किया है और मेरे साथ पास शब्द नहीं है। एक्सेलेंट जॉब यू हैव डन। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कोई ये नहीं जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई खत्म है। आप नाना पाटेकर को देख लीजिए, सवाना आदमी को देख लीजिए, बदसूरत लेकिन एक्टिंग में कमाल। आप एक भी फिल्म मिस न करना चाहेंगे। तो मैंने देखा है कि डायलॉग डिलीवरी और कॉस्ट्यूम डिजाइन बहुतों का बहुत ही अच्छा था, और जिसका कम भी था, कम ड्रेस में भी उसका डायलॉग डिलीवरी शानदार था। तो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। जब ये समय दिया गया है तो आप लोग सब कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले जाइएगा निश्चित। आज तो एक बिफोर वी अनाउंस द विनर जो अनीता मैडम करेगी, वो थोड़ा सस्पेंस बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। तो लेकिन अभी फिलहाल मेलोडी गर्ल आई है सामने में, और बहुत छोटा सा ही गाना गाएंगे। आप हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेलोडी गर्ल राशि। जरा खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। कभी कम पड़ जाते हैं, कोई कोई ऐसे सिंगर हमारे स्कूल में है। और जब अभिनय की बात आती है तो हम जरूर स्वागत करेंगे एक अभिनेत्री की, मैडम प्रियंका। किस चीज में नहीं है, साबित तो नहीं है कि गायन में नहीं है, कि नर्तन में नहीं है, कि अभिनय में नहीं है, तो इनके लिए जोरदार ताली प्रियंका मैडम। और इनफैक्ट
आज जो यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिला है सारे बच्चों का, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने बच्चों की प्रिपरेशन भी देखी है। खुद से स्क्रिप्टिंग, खुद से कॉस्ट्यूम, खुद से समय निकालकर डिसिप्लिन के दायरे में रहते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को छोड़ा गया कभी स्टेज पर आके प्रैक्टिस करने के लिए, कभी जब आपकी क्लास चली गई लाइब्रेरी में या कंप्यूटर लैब के लिए, उस वक्त समय का सही इस्तेमाल करते हुए the way you have practiced and enhanced your performance on the stage is a real praiseworthy. So let's have a clap in cha 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 format. 1 2 1 2 1 2 1 2. अब ये जो हमने देखा गुरु की देशभक्ति, सिकंदर, सिकंदर का असली नाम क्या था? और सिकंदर का मतलब क्या होता है? योद्धा या रक्षक या विजयी। और सिकंदर को सिकंदर नाम मिला था पोरस को हराने के बाद भारत में ही उसका नामकरण किया गया सिकंदर। ये उसके जीवन की आखिरी लड़ाई थी। पोरस से युद्ध करने के बाद और जीतने के बाद भी उन्होंने पोरस को गले से लगाया और वापस हो लिए। ठीक है, तो सिकंदर किसको कहते हैं? सिकंदर किसको कहते हैं? वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिन्हें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, आगे आगे हड़बड़ी डोलेगी हम चूम के, मुझसे everybody come on, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना आता है। तो तुम लोग सारे जीते हुए लोग हो। एग्जैक्टली, जो यहाँ बैठा, जो यहाँ परफॉर्म किया, जिनके गले में मेडल सजा, जिनके गले में नहीं सजा, वो सब कौन है? सिकंदर। ठीक है, ना ओवर जो गीता मेडल के साथ अच्छे से वेट कर रही है। बहुत कठिन। ओवर टू अंटार। सुप्रभात बच्चों। सही में यह काम तो बहुत ही कठिन था, क्योंकि यदि वास्तव में देखा जाए, यदि हम जज एज ए जज नहीं एज ए बोला जाए तो सारे फर्स्ट है, लेकिन ये प्रतियोगिता है, इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो होना ही है। कुछ ना कुछ जैसे मंच अलग अलग भाग किया गया, मंच सज्जा के लिए, संवाद के लिए, है ना, अलग अलग। और मंच संचालन आपका कैसा था, सज्जा कैसी थी? तो सबसे पहले सज्जा के लिए 7E के बच्चों के लिए जोरदार ताली पहले बजाएंगे। जहाँ तक सज्जा की बात है, ड्रेस बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, लेकिन सिर्फ सज्जा के आधार पर लोग नहीं करते। नाटक में सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आपका थीम क्या दिया गया, और आज का था देशभक्त पूर्व, यानी नाटक ओज से भरा हुआ, पानी में एकदम जो है वीरता का, ओज का संचार हो। सबसे पहली बात थी कि वाणी जो हो एकदम देशभक्त से भरी हुई होनी चाहिए। तो सबसे पहले थीम को हम लोग देखते हैं कि थीम क्या दिया गया था,
नाटक यानी अपना अभिनय दिखाना है आपको, और दूसरी बात की पीठ नहीं दिखानी है ऑडियंस सामने। इसलिए जब भी आप कोई भी नाटक करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑडियंस की तरफ पीठ नहीं करना है और अपनी बात को एकदम आराम से ध्यान से करना है, बोलना है, भागना नहीं नाटक के दौरान। तो विभिन्न जो पहलू है उनको देखते हुए कुछ ना कुछ मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में ज़्यादा नंबर का अंतर नहीं है, बस एक आधा नंबर का भी अंतर है। इसलिए अब नीचे से शुरू करते हैं कि थर्ड जो है वो 2 क्लास के लिए है